Dr. Nilesh, you are welcome, and we start the meeting. It is a. I will slide. I will introduce first. Very happy to invite and acceptance by Dr. Nilesh Patel in Doctor Today Talk Show. Is a today's guest speaker, and he is going to talk about acupuncture. Well qualified from Indore, educational qualification MBBS and diploma in acupuncture, especially trained in acupuncture and electrotherapy. He has done PGD, GM, postgraduate diploma in geriatric medicine also, COBC certificate of basic competency of acupuncture from London, UK. Postgraduate certificate course in traditional Chinese medicine and acupuncture from Beijing, China. Program in charge in postgraduate diploma in acupuncture, PGD ACP, run by IGNU a long time before from 2008 to 2012 and later on from 2018 to 2021. External examiner in PGD ACP 6 times and internal examiner 2 times. Work experience running his own clinic from acupuncture since 1991. 35 years of experience a person has. Distinction awarded 8 gold medal in various conferences. Has got as a mobile number. If you have got any problem, any issue, you can write him or you can talk to him via the email. He was awarded Best Paper Award for 7-time complication of acupuncture 1997, management of obesity by acupuncture 2000, treatment of facial palsy by acupuncture 2002, MRI study of brain to show the response on acupuncture stimulus by UB60 2008. A comparative study of acupuncture and light therapy in cellulite patient 2010. Best Scientific Paper Award 2014 in Mumbai. Management of obesity by acupuncture. Best Scientific Paper Award 2017. AAAICON Indore. Management of skin diseases by acupuncture. Brand Ambassador for Vega Test in India. Now I come to our aim. Our aim is to update the society from the different therapies available in our own countries so that the people know what are the benefit and what are the losses, both the sides. If you like our program, you can subscribe our channel. Your suggestion, comments are always welcome. I invite Dr. Nilesh Patel to start the show, and he can, if you want, he can share his slides. So my first question is, what is acupuncture? Sir, acupuncture is a medical science. It is recognized by WHO. The word acupuncture is from Latin language. It composed of 2 words. Acus means needles and punctura means to puncture. So in this medical science, diseases are treated by inserting small, very fine needles on specific area of our body. तो क्या एक्यूपंक्चर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मान्यता प्राप्त है? हाँ सर, एक्यूपंक्चर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त है। 1960 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्यूपंक्चर को मान्यता दी हुई है। उस समय इसका जो आधार है वो सिर्फ क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट था। करीब 40 से 50 बीमारियों का इलाज एक्यूपंक्चर से संभव है, यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था।
परंतु इस सबसे ज्यादा ध्यान इसका आकर्षित हुआ है 1970 में, जब अमेरिकन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन चाइना गए हुए थे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी को एपेंडिसाइटिस, पोस्ट एपेंडिसाइटिस के कारण पेन हो रहा था, उसका इलाज एक्यूपंक्चर से किया गया। उसके बाद दुनिया का ध्यान एक्यूपंक्चर की तरफ आकर्षित हुआ और दुनिया में इसके जो एक्यूपंक्चर की नॉमेनक्लेचर है उसको फिर से डिफाइन किया गया और दूसरी अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेज शुरू किए गए। हमारे देश में 2003 में एक्यूपंक्चर को जो है एज ए मोड ऑफ थेरापी मान्यता दी हुई थी और सितंबर 2024 में इसको अलाइड हेल्थ साइंस में ले गए थे। एक्यूपंक्चर को इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस यह 2019 में भारत सरकार ने घोषित किया है। एक्यूपंक्चर में इलाज कैसे करते हैं? सर कोई भी पैथी हो, सबसे पहले हमें उसका डायग्नोसिस बनाना जरूरी है। तो एक्यूपंक्चर में भी हम जो डायग्नोसिस और हमारे एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो दूसरी पैथी जैसा ही है, परंतु इसमें हम लोग विशेष ध्यान देते हैं टंग और पल्स डायग्नोसिस में। आजकल इसके भी नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं। हम इसमें हम टोटल 12 तरह की पल्स लेते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कौन से ऑर्गन में क्या खराबी है, कौन सा ऑर्गन बराबर काम नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्यूपंक्चर पॉइंट को चूज करते हैं और हम उसके हिसाब से एक्यूपंक्चर पॉइंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और एक्यूपंक्चर की सुइयां लगा के हम इलाज करते हैं। यह एक इक्विपमेंट है जो हमारी पल्स पे हम रखकर उसकी पूरी स्टडी करते हैं। इसके में काफी कुछ योगदान मेरा भी है, ये रशियन कंपनी ने बनाया हुआ है। इसी प्रकार हमारी जो टंग है, इसमें हमारे शरीर के जितने भी अंग है उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। यदि किसी को अस्थमा है तो उसके हिसाब से हमारी जबान पर कुछ चेंजेस आएंगे। उसको हम आइडेंटिफाई करके क्या इलाज करना है, उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को हम लोग चूज करेंगे और उसके बाद हम इलाज शुरू करते हैं। क्या एक्यूपंक्चर इलाज में सुइयों के अलावा और भी साधनों का उपयोग होता है? सर बेसिक जो इक्विपमेंट है वो तो नीडल्स ही है, परंतु आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो एक्यूपंक्चर में हम सुइयों के अलावा दूसरे इक्विपमेंट का भी उपयोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टिमुलेटर। पहले क्या हम्म, था, जब इलेक्ट्रॉनिक ईरा नहीं था, उसके पहले सुइयों को पकड़ के हाथ से उसको स्टिमुलेट किया जाता था। अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया तो हम सुइयों को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की मदद से उसको स्टिमुलेट करते हम्म। हैं। आजकल हम एक्यूपंक्चर के इलाज के लिए लेजर का भी उपयोग करते हैं। इसमें हम जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उसको लेजर की मदद से स्टिमुलेट किया जाता है। हम्म। एक लेजर से क्या होता है, हम्म। जो हमारे मास्ट सेल है ये डिग्लूटिनेशन होता है उसमें, और उसमें हिस्टामिन वगैरह बाहर निकलते हैं और जो नर्व को इरिटेट करते हैं। और एक्यूपंक्चर गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन के हिसाब से काम करता है, तो लेजर वही इफेक्ट देता है जो सुइयां इफेक्ट देती है। उसके हम्म। अलावा एक हर्ब होती है मॉक्सा, इसको एक्यूपंक्चर पॉइंट पर हीट स्टिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इस ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये मॉक्सा ही सुई लगी हुई है, इसके ऊपर ये मॉक्सा लगा हुआ है। मॉक्सा, ये इसका जापानी जो इसका मीनिंग है जीव, उसका मतलब जलना। जब इसको हम जलाते हैं तो इसमें काफी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, करीब 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जा सकता है। तो इसको हम्म। हम हीट, जहाँ पर ऐसी बीमारी हो जो ठंड के कारण होती है, या कोई पुरानी बीमारी जैसे गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें हम हीट स्टिमुलेशन के लिए मॉक्सा को यूज करते हैं। इसके अलावा कप थेरापी भी इसमें यूज होती है। क्या एक्यूपंक्चर की सुइयां विशेष प्रकार की होती हैं या हाँ सर, किस धातु की बनी होती है? एक्यूपंक्चर की सुइयां विशेष प्रकार की होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, जी। ये सुइयों को हम लोग फिलीफॉर्म निडल कहते हैं। इसमें ऊपर का काफी जो डिफरेंट हिस्सा टाइप है ये की, वाला, क्या सर? काफी डिफरेंट टाइप की सब सुइयां हाँ, दिख रही काफी हैं। डिफरेंट टाइप की सुइयां होती है। इसका जो ऊपर का जो भाग है वो स्प्रिंग जैसा होता है, ताकि उसके कारण सुई को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है।
और नीचे का भाग स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है। हम्म। तो ये विशेष प्रकार की सुइयां होती है, इसको हम फिलीफॉर्म नीडल्स कहते हैं। ये अलग अलग साइज की रहती है, 1 इंच से लेके 6 इंच तक की सुइयां होती है। और इसका डायमीटर बहुत ही पतला होता है, 0.25 से लेकर 0.18 तक का इसका डायमीटर होता है। तो ये शरीर में जब जाती है कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं करती है। हम्म। जैसे ये अलग अलग धातु की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, तो क्या अलग अलग धातुओं की सुइयों का प्रभाव भी अलग अलग होता है? सर पहले ऐसा मानते थे कि अलग अलग धातु की जो सुइयां है वो अलग अलग बीमारी में काम करेगी। जैसे पहले यहाँ हमारे पास लेबोरेटरी वगैरह सुविधा नहीं थी, तो उस समय हम लोग ऐसा सोचते थे कि कोई बीमारी ठंड के कारण हुई है, कोई बीमारी गर्मी के कारण हुई है, कोई बीमारी डैम्प सीजन के कारण हुई है। तो कुछ जगह हमें कुछ बिंदुओं को उत्तेजित करना पड़ता था, कुछ बिंदुओं को हमें सेडेट करना पड़ता था। तो उसमें सिल्वर गोल्ड ऐसी सुइयां उपयोग में की जाती थी। पर आधुनिक रिसर्च से यह मालूम पड़ा कि सभी सुइयां एक जैसा ही काम करती है। तो ऐसे विशेष प्रकार की सुइयों का अब ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई अलग से इफेक्ट देती होगी। तो आजकल सारी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई सुइयां वही उपयोग में की जाती है। हम्म। तो एक ही समय में कितनी सुइयां लगा सकते हैं मरीज को? सर ये डिपेंड करेगा कि उसको बीमारी क्या है। एक समय में मरीज को बीमारी के अनुसार सुइयां लगाते हैं हम लोग। तो इसमें करीब कभी 3 सुइयां 4 सुइयां, कभी हमें जरूरत पड़ी तो 20 सुइयां तक हम लगा सकते हैं। तो ये हम्म। बीमारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मरीज को कौन सी बीमारी है और साथ में हम कौन से भाग पे सुइयां लगा रहे हैं। उसके हिसाब से हम सुइयों का जो संख्या है कम ज्यादा करते हैं। हम्म। तो एक समय में जितनी ज्यादा सुइयां लगाते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बीमारियों का इलाज, एक्यूपंक्चर से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? सर पहले के जमाने में सभी तरह की बीमारी का इलाज एक्यूपंक्चर से होता था, परंतु आजकल हम लोग जो है एक्यूपंक्चर के लिए कुछ विशेष बीमारियों में इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे हम्म। स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रोजन शोल्डर या फिर माइग्रेन, उसका इलाज हम एक्यूपंक्चर से करते हैं। सर्दी का इलाज हम एक्यूपंक्चर से करते हैं। अस्थमा का इलाज इससे हम करते हैं। उसके अलावा ये मेरे कुछ पेशेंट के फोटोग्राफ है। ये ल्यूकोडर्मा का इलाज एक्यूपंक्चर से किया गया है। ये जो हम देख रहे हैं ये पहले इतना बड़ा पेज था, ट्रीटमेंट के बाद इसमें पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया है। ये पेज पहले, ये बाद में। तो एक्यूपंक्चर से ल्यूकोडर्मा का इलाज होता है। गठिया, अर्थराइटिस, रूमेटोड अर्थराइटिस, शाइटिका, बैक एक, इसका इलाज एक्यूपंक्चर से होता है। इसके अलावा मैंने एक्यूपंक्चर से गॉल स्टोन भी निकाले हुए हैं। आप जो देख रहे हैं पहले पिक्चर में गॉल स्टोन है, बाद में दूसरे पिक्चर में एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के बाद गॉल स्टोन टोटली रिमूव हो गया है। उसके हम्म। अलावा मैं पैरालिसिस, ये आप जो देख रहे हैं बेल्स पाल्सी, चेहरे का हम्म। लकवा, इसमें मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यदि पेशेंट हमारे पास 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाए तो अगले 24 घंटे में पूरा ठीक हो जाता है। जितना मरीज वाह, लेट आता उतना उसमें टाइम ज्यादा लगता है। सही ये बात। ये बेल्स पाल्सी है। इस पे मैंने पेपर प्रेजेंट किया हुआ है। मैंने अभी तक करीब 3,000 से ऊपर बेल्स पाल्सी के पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं। वाह, ग्रेट। ये सारे बेल्स पाल्सी के हैं। फिर नॉन हीलिंग अल्सर, ये जो आप देख रहे हैं डायबिटिक फुट, नॉन हीलिंग अल्सर, इसमें भी एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी उसके कौन सी अलावा बीमारियों लकवा, की हाँ। ये पैरालिसिस, ये जो पेशेंट है ये एक वेल्डर है। हम्म। इसका ये हाथ में पैरालिसिस था। फिर हाँ हाँ। ये ट्रीटमेंट के बाद 8 दिन के अंदर ये इफेक्ट है। ये वायरल डिसीज के बाद इनको पैराप्लेजिया हो गया था। मेरे पास जब आया तो कैथेटर था और दोनों पांव पैरालाइज थे। ये कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद कैथेटर निकल गया और वो पेशेंट अब वॉकर से चल रहे हैं। और अब ये आराम से विदाउट वॉकर, स्टिक खाली इसलिए कि गिर ना पड़े इसलिए, अभी ये पेशेंट कार वगैरह सब चला रहे हैं। हम्म। बहुत अच्छी बात। ये हेमीप्लेजिया का पेशेंट है। ये ट्रीटमेंट के बाद
ये एक ई रिक्शा चलाता है। इसको यहाँ पे गर्दन में कुछ चोट लगी थी, उसकी वजह से इसको अपर एक हाथ का पैरालिसिस हो गया था। ये हम्म, 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अपना हाथ चला पा रहा है, और करीब 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये पूरा हाथ अपना चला पा रहा है। अभी ये आप टैक्सी वगैरह सब चला रहा है। हम्म। काफी अच्छे से बताया आपने। पर आप बताएंगे कि इसमें एक्यूपंक्चर से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज संभव नहीं है? एक्यूपंक्चर में सर इन्फेक्शियस डिसीज का ट्रीटमेंट पहले होता था, पर अभी हम लोग नहीं करते हैं। कैंसर का इलाज एक्यूपंक्चर से संभव नहीं है। सर्जिकल प्रॉब्लम जो है, उसमें भी एक्यूपंक्चर का इलाज संभव नहीं है। परंतु कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ कैंसर के इलाज में एक्यूपंक्चर किया जाए तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और हम्म, जो मेडिसिन की जो दुष्परिणाम है, साइड इफेक्ट्स है, उसको हम एक्यूपंक्चर की मदद से कम कर सकते हैं। हम्म, और एक्यूपंक्चर में आजकल हम कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर का भी उपयोग करते हैं। हम्म, जैसे ये फेस लिफ्टिंग के लिए है। ये हम्म, नेजोलेबियल फोल्ड आपको दिख रहा है, ये ट्रीटमेंट के हम्म, बाद ये ठीक हुआ। एक ने हम्म, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। ये सैगिंग ऑफ फेस है, बिफोर ट्रीटमेंट। ये सर आफ्टर ट्रीटमेंट। फिर ब्लैक पेचेस ये जो दिख रहा है, बिफोर ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट। उसके अलावा एक्यूपंक्चर का उपयोग में हम ओबेसिटी में भी करते हैं। ये बिफोर ट्रीटमेंट, ये आफ्टर ट्रीटमेंट। ये बिफोर ट्रीटमेंट, ये आफ्टर ट्रीटमेंट। तो एक्यूपंक्चर में जो है, ओबेसिटी की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें खाली सिर्फ फैट लॉस होता है, हम्म। बाकी मसल्स मास प्रिजर्व करता है। ये मेरा पहला पेशेंट है जिसका वजन था 156 किलो। ओ। बाद में 6 महीने के ट्रीटमेंट का 80 किलो पे आ गए। हम्म, तो ये एक्यूपंक्चर का आजकल उपयोग हम कॉस्मेटिक साइड भी करते हैं, फेस लिफ्टिंग के लिए, प्री मैच्योर रिंकल्स के लिए, एक्ने के लिए, डार्क सर्कल्स, फिर अंडर आई बैग्स, उसके लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है। क्या एक्यूपंक्चर के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? नहीं सर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रॉपर प्रिकॉशन ली जाए और क्वालिफाइड डॉक्टर यदि इसको ट्रीटमेंट करता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। माइनर कॉम्प्लिकेशंस टेम्प होते हैं, जो आराम से हील हो जाती है। जैसे कुछ स्पॉट पे हल्का सा ब्लीडिंग होना, या वहां पर थोड़ी स्वेलिंग आ जाना, ये कभी कभार होता है। बाकी हम्म। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे सुइयां लगाते हैं आप, तो क्या एक मरीज से दूसरे मरीज को क्रॉस इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, कि एक की बीमारी दूसरों को लग जाए, ऐसे भी चांसेस होते हैं क्या? सर उसके चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग सभी मरीज की सुइयां अलग अलग रखते हैं। और आजकल डिस्पोजेबल सुइयां भी आ गई है, तो हम्म, डिस्पोजेबल सुइयों का जब उपयोग किया जाता है तो उसके चांसेस हम्म, नहीं है। एक हम्म, प्रोपोगंडा किया जाता था कि एक्यूपंक्चर की सुइयों से एड्स वगैरह होता होगा। परंतु मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूपंक्चर, उसके लिए मैंने करीब 123 रेफरेंसेस ढूंढे थे। लैंसेट में सिर्फ हेपेटाइटिस का एक केस मिला था, हेपेटाइटिस बी। और एड्स का आज तक सिंगल केस वर्ल्ड पूरी दुनिया में रिपोर्टेड नहीं है जो एक्यूपंक्चर हम्म, से हुआ हो। उसका कारण यह हम्म, है कि एड्स का वायरस काफी वीक वायरस होता है। हम हाँ, सेवलों से भी क्लीन करें तो एड्स का वायरस डैमेज हो जाता है। सेकंड, हम्म, एड्स बीमारी के लाइव मीडियम चाहिए। यदि ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है या फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होता है। जबकि एक्यूपंक्चर की सुइयां मैंने एक बार निकाल दी और उसको लाइट में लिया मैं, तो एड्स के चांसेस बिल्कुल नहीं है। परंतु हम्म, हम डिस्पोजल सुइयां उपयोग करते हैं, इसलिए कोई भी खतरा नहीं है, इसमें बिल्कुल सेफ हम्म। मेथड है। तो क्या एक्यूपंक्चर का इलाज काफी महंगा होता है क्या? नहीं सर, एक्यूपंक्चर का इलाज महंगा नहीं है। आजकल हम देखें तो दवाइयों की कीमत, हॉस्पिटल के चार्जेस, ये सब देखें, उसके मुकाबले एक्यूपंक्चर काफी सस्ता है। हाँ, हाँ। एक्यूपंक्चर की सुइयां भी बहुत सस्ती आती है अब। काफी से इंडिया में भी काफी अवेलेबल है, तो अब ये इलाज इतना महंगा नहीं। हम्म, आजकल सुनने में आता है कि एक्यूप्रेशर के बारे में भी काफी सुनने में आ रहा है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर ये बात बिल्कुल सही है कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से ज्यादा एक्यूप्रेशर प्रचलित है। परंतु दोनों चीजें टोटल अलग अलग है।
एक्यूपंक्चर मैंने आपको पहले जैसे बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एकस एंड पंक्चूरा। तो हम्म, एकस मतलब सुइयां, एंड पंक्चूरा या पंगस इसका मतलब होता है पियर्स करना है, छेद करना। तो एक्यूपंक्चर की सुइयों से, एक्यूपंक्चर से छेद कर सकते, ये तो दिख रहा है, पर एक्यूप्रेशर टर्मिनोलॉजी गलत है। एकस मतलब तो हो गया निडल्स, एंड प्रेशर मतलब टू अप्लाई द प्रेशर। तो सुई की मदद हम्म, से हम कभी भी प्रेशर नहीं लगा सकते, हमेशा पंचर ही होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी गलत है। सेकंड, एक्यूपंक्चर जो है इसकी कंप्लीट थ्योरी है। इसको जो है टोटल 12 मेरिडियन होते हैं जो अंदर इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है। और टंग डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस बीमारी का बिल्कुल हम लोग आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। जबकि एक्यूप्रेशर की अपनी इस तरह से कोई थ्योरी नहीं है। एक्यूप्रेशर में एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट, सियात्सु टेक्निक, रिफ्लेक्सोलॉजी इसका समावेश है। सेक और उसके अलावा एक्यूपंक्चर के सारे इफेक्ट हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। मेरी ही एक रिसर्च है जो इंडिया में एकमात्र रिसर्च है अभी, वो है एफएमआरआई और एक्यूपंक्चर की स्टडी। ये मैंने इनमास, डीआरडीओ के अंडर आता है दिल्ली में, वहां मैंने स्टडी करी हुई थी। जो हमारा लेटरल मेजोलस है वहां हम सुई को लगाते हैं और उसकी एफएमआरआई लेते हैं। ये एफएमआरआई का हम्म, मतलब होता है फंक्शनल एमआरआई। उसमें मैंने ये हाँ हाँ। पाया कि स्टिमुलेशन के बाद विजुअल एसोसिएटेड एरिया, जो हमारी विजुअल मेमोरी स्टोर है, वो एरिया एक्टिवेट होती है। उसके हम्म, अलावा एक्यूपंक्चर की जो मेरिडियंस है, इसको हम लोग टेक्नीशियम 99 ये इंजेक्ट करके हम एक्सरे फिल्म पे इसको देख सकते हैं। तो लेबोरेटरी एविडेंस भी है। इसको एक्यूपंक्चर के बाद बॉडी में एंडोर्फिन, सेफेलिन, एनकेफेलिन, इस तरह के जो सीरोटोनिन, इस तरह केमिकल्स निकलते हैं, ये सारे इसका लेबोरेटरी बेस्ड है। और दूसरी बीमारी जो ठीक होती है उसको भी हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं। तो एक्यूपंक्चर पूरा एक एविडेंस बेस्ड साइंस है, जबकि एक्यूप्रेशर में ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूप्रेशर पॉपुलर जरूर है। तो इसी एक तरह से पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी सबका समावेश है। दोनों चीजें हम्म। अलग अलग है सर। तो जब इतने इसके एक्यूपंचर के फायदे हैं तो फिर ये साइंस जो है एक्यूपंचर की, जो चाइना से प्रोबेबली आई, तो फिर इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं, विकसित क्यों नहीं हो पाई? सर इसका का, काफी कारण है इसके पीछे। जैसे आज जो पॉपुलर है वो कन्वेंशनल मेडिसिन मतलब एलोपैथी है। आज कोई भी डॉक्टर या यंग लड़का अपना करियर बनाना चाहेगा, वो पहले देखेगा कि कौन सी चीज एस्टेब्लिश है, तो उसके हिसाब से वो एलोपैथी तरफ ही जाएगा। हम्म, एक्यूपंक्चर में अभी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज अभी किया है, 2024 में इसको कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज किया हुआ है। टाइम बहुत कम हुआ है। सरकारी अस्पताल में डिपार्टमेंट नहीं है। मेडिकल काउंसिल सिर्फ वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है। इंडिया में ऐसी एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल नहीं है। इसकी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हो रहा। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसके डिपार्टमेंट ओपन हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इसके डिपार्टमेंट ओपन हो, तो डेफिनेटली इसका प्रचार और प्रसार बढ़ेगा और हम्म, एक्यूपंक्चर भी पॉपुलर होगा। डेफिनेटली। थेरेपी तो है, और मैंने खुद भी आपके क्लिनिक में एक बार आके देखा है कि काफी लोग आपको प्रसन्न प्रसन्न चित्त दिखे लोग मुझे, और इनकरेज कर रहे थे कि हाँ, ये डॉक्टर साहब ने अच्छा काम करा है, और आ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे देश में बढ़ेंगी, और कम समय में, कम पैसे में, कम खर्चे में हमारे भारत के मरीजों को फायदा होगा। और आपने जो नीलेश जी, आपने जो पूरा ब्यौरा दिया इसका, और अच्छे से बताया पूरा, और जो आपने इतनी रिसर्च करी है उसका बहुत साधुवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी अगर जो ट्रीट करेंगे तो उसके बाद फिर हम वापस अ, मिलेंगे आपसे। और आपके आपने समय निकाला बिजी समय में से, और डॉक्टर टुडेया टॉक शो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद सर। सर थैंक आप यू मैं सो मच। किसका बताऊं आपको पुराना? एक मिनट सर, ये स्लाइड वो बंद कर दो आप।
स्लाइड बंद कर दो। स्लाइड शो। हाँ सर। हाँ बताओ। अब रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, अब आप वी कैन रिकॉर्डिंग टॉक। बंद। आ, कल जो आपसे बात हो रही थी, मुझे किरण का एक किस्सा याद आया था। अच्छा। आप बाहर गए हुए थे, मैं अभी क्लिनिक संभाल रहा था, तो पेशेंट ने बोला कि याद डॉक्टर आ साहब गया। कहाँ है। बोले "ये सर के छोटे भाई है मोना सरदार, जो पंजाब से आए"। मेरे को याद है, अच्छे से, बहुत अच्छे से याद। वी हैव गॉट लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज। और बहुत अच्छा समय निकाला हमने और साथ में, और रियली में इट वाज वंडरफुल टाइम वी हैड। हम्म। कुछ कुछ यादें हैं जो दिल में बसी रहती हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की यादें, एक दूसरे का काम। मेरे को बहुत सारे किस्से आपके याद आ रहे थे, इसमें से एक ये था। आई नो, आई रिमेम्बर। मुझे अच्छा है कि आप और माधवी साथ में थे, उस टाइम काम करते थे उनके यहाँ, तो अच्छा लगता था। सब साथ में रहते थे। इमरजेंसी में सुरेंदर भी आ जाती थी, और सिजेरियन के लिए वगैरह या हाँ कुछ सर। कॉम्प्लिकेशन होता था तो अपना क्लिनिक छोड़ के भी भागे हैं। हम्म। समय की बात है, समय बलिहारी है, समय निकल गया, इतना यहाँ तक पहुंच गए। शुक्र है ईश्वर का। सर अभी रिकॉर्डिंग बंद है ना? हाँ बंद है। हाँ। मैंने आपको, गुप्ता जी से मैंने बात करा था आपका, हम्म। जो पुरुषोत्तम जी गुप्ता, वो हम्म। उसमें है अपने माधव सृष्टि में। वो और हम्म। संदीप जमींदार, ये दोनों डिसीजन लेते हैं। हम्म। तो मैंने उनको आपका पूरा बताया मैंने। तो बोले डॉक्टर साहब एक दिन बैठ के मुझे डिटेल में पूरा बताइए, और होगा तो अपन डॉक्टर साहब को बुला लेंगे, डॉक्टर साहब समझे, फिर अपन डिपार्टमेंट दूसरे का शुरू करना है तो अपन सोचते हैं। ये बात हुई उनकी। मैंने चलो सर ठीक। मेनली एडोलेसेंट किशोर अवस्था वाले जो पीडियाट्रिक ग्रुप है उसके लिए काम कर रहे हैं सर। और सर का उसका कमांड काफी अच्छा है। मैंने डिटेल तो सर ही बता पाएंगे हमको। तो बोले नहीं नहीं, बोले टॉपिक आपने जो बोला वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो बोले अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है, तो अगले सप्ताह तक जैसे फ्री हो जाएंगे, फिर बोले हम्म। सर को अपन बुला लेंगे अगर जरूर पड़ी तो मैं सर आपको फोन करूंगा, और जब भी हाँ, एक दो दिन पहले, तो आप फिर आ कोई प्रॉब्लम। जाइएगा, है ना ठीक सर? है। चलो, ओके। सी ओके, यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।